Hello everyone. Now again welcome in video lecture class. Today I am going to talk about the topic government agencies of education. The particular topic related to MAT semester 1 in unit 4 paper education studies. As you know that in the early video class I have also discussed about the agencies of education, that is especially government agencies, that is UGC, AIU and so on, AICT. But today uh, I have emphasized only, that means I will emphasize the control and autonomy of UGC and also role and involvement of AICTE and also control and autonomy of AICTE. आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ सरकारी एजेंसियों के बारे में जो कि शिक्षा से संबंधित होती हैं, और यह टॉपिक एमएड सेमेस्टर 1 के अंतर्गत पेपर एजुकेशन स्टडीज में यूनिट 4 में है। इसके पूर्व के वीडियो में मैं जो सरकारी एजेंसियां शिक्षा विभाग के अंतर्गत काम करती हैं उसके बारे में बात किया हूँ। आज मोस्टली मैं यूजीसी की जो स्वायत्तता है और नियंत्रण है, जो कि उसके प्रेम्बल के अनुसार यानी प्रस्तावना के अनुसार निर्धारित है, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। साथ ही साथ मैं तकनीकी शिक्षा यानी भारत सरकार जो तकनीकी शिक्षा परिषद है उसके बारे में भी बात करूँगा। मैं बता दूं कि ये सभी जो हैं सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी तक के अंतर्गत आते हैं और टेक्निकल एजुकेशन मोस्टली है, और यूजीसी कॉलेज लेवल की है जिसमें कि उनका नियंत्रण, समन्वय, कोऑर्डिनेशन सभी चीज़ें आती हैं। तो सर्वप्रथम अगर कंट्रोल एंड ऑटोनॉमी यानी यूजीसी की मैं बात करूं तो थोड़ी मैं बात स्पष्ट कर दूं कि क्या है उसकी कंट्रोल एंड ऑटोनॉमी। फर्स्ट, दैट मीन्स आई एम डिस्क्राइबिंग इन इंग्लिश वर्सन फॉर कंट्रोल एंड ऑटोनॉमी, especially for UGC control and autonomy कि whereas University Grant Commission UGC is mandated to coordinate and determine the standards of higher education in institutions of higher education. Second one, whereas UGC recognize the importance of granting autonomy to institutions of higher education as a way of promoting and institutionalizing institutionalizing excellence. Next one, whereas pursuit of excellence for institutions of higher education is an incremental process and without a well intentioned framework of regulations and systemic checkpoints, these institutions cannot scale the next level of quality and excellence. Next, whereas the complementary relationship between regulatory environment and degree of autonomy has to be mediated by the relative principle of excellence in institutions of higher education. Therefore, next point, therefore, in exercise of the powers confirmed by clause F and G of subsection 1 of section 26 of University Grant Commission Act 1956, the University Grant Commission hereby make the following regulations, that is related to application and commencement. These regulations shall be called the University Grant Commission, that is
related to 2017, that is the latest. Next one, they shall apply to all universities established or incorporated by or under a central act, a provincial act, or a state act, and institution deemed to be university under the section 3 of UC Act 1956. And the 3, they shall come into force from the date of their notification in the official gazette of India. Now all thing, that means सभी चीज़ों को मैं अब थोड़ा हिंदी में बता दूं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत नियंत्रण और स्वायत्तता की जब बात करते हैं तो उसके प्रस्तावना में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसको मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी को समन्वय के लिए अनिवार्य है और उस शिक्षा के संस्थानों में उस शिक्षा के मानकों का निर्धारण होता है। सेकंड, दूसरा, जबकि यूजीसी संस्थानों को स्वायत्तता देने के महत्व को पहचानता है और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और संस्थागत बनाने के तरीके के रूप में उस शिक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट, जबकि उस शिक्षा के संस्थानों के लिए उत्कृष्टता को आगे यानी दैट मीन्स उसको आगे बढ़ाने में एक है, साथ ही साथ वृद्धिशील प्रक्रिया, दैट मीन्स कैसे उसको प्रोग्रेस किया जाए, वृद्धिशील प्रक्रिया और नियमों के एक सुविचारित ढांचे के बिना और प्रणालीगत ये संस्थान गुणवत्ता के अगले स्तर का पैमाना नहीं बना सकते बल्कि उत्कृष्टता को ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट में, जबकि नियामक पर्यावरण और इसके बीच पूरक संबंध स्वायत्तता की डिग्री में उत्कृष्टता के सापेक्ष में सिद्धांत द्वारा मध्यस्थता की जानी चाहिए और उस शिक्षा वाले संस्थानों को इसे प्रदान करना चाहिए। इसलिए उपखंड एफ और जी द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ के अभ्यास में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 26 की धारा 1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निम्नलिखित नियम बनाए गए। आवेदन और प्रारंभ क्या क्या चीज़ें हैं? एक, इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहा जाएगा जिसमें कि वे सभी विश्वविद्यालयों में स्थापित होंगे या जिनके द्वारा वे उनके अधीन में शामिल होंगे। केंद्रीय अधिनियम एवं प्रांतीय अधिनियम एवं राज्य अधिनियम और संस्थान डीम्ड होने के लिए यूजीसी की अधिनियम 1956 की धारा के 3 के तहत विश्वविद्यालय के अंग होंगे। नेक्स्ट, वे आधिकारिक में अपनी अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे जो कि भारत के राजपत्र के अंतर्गत शामिल होगा। ये जो बातें मैं बताया मुख्य रूप से कंट्रोल या नियंत्रण और स्वायत्तता के अंतर्गत आते हैं। अब कुछ चीज़ों को मैं स्पष्ट कर दूं और जैसे कि कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय स्थापित करना, साथ ही साथ इस चीज़ को ध्यान रखना कि कैसे, जो कि कार्य में तो मैंने विस्तार से बता चुका हूं कि कैसे सारे चीज़ों के साथ कोऑर्डिनेशन समन्वय स्थापित किया जाए। साथ ही साथ मुख्य रूप से अनुसंधान और इस चीज़ पर ध्यान रखना कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विकास हो। यूजीसी इस पर मुख्य रूप से ध्यान देती है। अब एक और संस्था जिसकी कि मैं थोड़ा सा बात करूं, अगला जो इसके अंतर्गत आते हैं तो वे मुख्य रूप से नेक्स्ट वन इज ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन
as you know that All India Council of Technical Education, after independence, it was set up in 1957 at New Delhi in order to provide advice on the improvement of technical education. It was constituted by the representative of Lok Sabha, different state government and other technical institutions. It has also a general body which has 60 members. The council undertakes planning, number 1, implementation, quality maintenance, number 3, execution of higher and technical education. That is the main purpose and the main motto of the All India Council of Technical Education. Now in हिंदी, अब मैं थोड़ा इसे हिंदी में स्पष्ट कर दूं, तब इसके फिर रोल और इन्वॉल्वमेंट यानी इसकी भागीदारी और भूमिका के बारे में भी विस्तार से बात करूंगा। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का छोटा सा एक इंट्रोडक्शन मैं दे दूं। आज़ाद भारत में यानी स्वतंत्रता के बाद इसकी स्थापना 1957 में नई दिल्ली में की गई थी ताकि तकनीकी शिक्षा के सुधार पर सलाह दी जा सके। इसका गठन लोकसभा विभिन्न राज्य सरकारों और अन्य तकनीकी संस्थानों के प्रतिनिधियों के द्वारा किया गया था। इसका एक सामान्य निकाय भी है जिसके 60 सदस्य होते हैं। परिषद उच्च तकनीकी शिक्षा, क्या परिषद का मुख्य रूप से उद्देश्य था? परिषद उच्च तकनीकी शिक्षा की योजना का कार्यान्वयन करना, नंबर 1, नंबर 2 गुणवत्ता का रखरखाव करना, नेक्स्ट उसका निष्पादन करना, और साथ ही साथ तकनीकी परिषद यानी तकनीकी जो बोर्ड होती है उसकी गठन करना ताकि वो सभी चीज़ों का सिस्टमेटिक वे में काम यानी व्यवस्थित तरीके से काम कर सके। तो आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ और उम्मीद कर रहे हैं कि आप इसको ध्यान से सुनेंगे, उसका नोट्स तैयार करेंगे और इससे संबंधित इसकी जो भूमिका, भागीदारी, स्वायत्तता और नियंत्रण की बात है वह अगले वीडियो में बात करेंगे। उसके अलावा और जो गवर्नमेंट एजेंसियां हैं उसके बारे में भी अगले वीडियो में आगे एक क्लास में बात करेंगे। लास्ट में मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे, आप लोगों से, कि गवर्नमेंट एजेंसियां का सबसे बड़ा आधार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विकास करना और खासकर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी और कॉलेज लेवल में यानी माध्यमिक स्तर पर, वरिष्ठ माध्यमिक स्तर, ये चूँकि बैकबोन होते हैं, और उच्चतर स्तर पर यानी विश्वविद्यालय स्तर पर गुणवत्ता कैसे बनाई जाए इस पर ध्यान दिया जाए। ये महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। तो लास्ट में अब इस जो वीडियो लेक्चर का क्लास था मैं इसे समाप्त कर रहा हूँ और इसे अगर आपको पसंद आया होगा तो आप इसको अच्छी तरह से नोट्स इसका तैयार करें। और अगर आप अभी तक इस चैनल को हमारे चैनल को नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको जल्द से जल्द जैसे ही वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगा आपको जल्द से जल्द प्राप्त होगा। मिलते हैं अगले क्लास में एक और नए वीडियो के साथ। आज के लिए धन्यवाद।